So in previous video of this series, we have discussed about the API gateway. इसके अंदर जो भी JSON configuration होता है, वो भी JSON configuration हमने देखा that how we are able to define the configuration for the service 1 and service 2. So in this video में मैं आपको वो demonstrate करके दिखाऊंगा that how it is going to work. Let's say मेरी first API जैसे हमने पहले discuss किया था, it is running on the we can say the port 5001 and service 2 is running on the 5002. So with the help of Ocelot, how we are going to call it with the we can say the port of a 7000 that we have defined default as a base configuration, right? So that thing we are going to demonstrate in this video. Yeah, so let's start. Yeah. So hello everyone, my name is Manoj Jadeja और मैं आप सभी का मेरी चैनल डिबग डायरीज में स्वागत करता हूँ. सो अभी इसके अंदर मैंने क्या इम्प्लीमेंट किया है मैं आपको दिखाता हूँ. जब भी आपको कोई भी माइक्रो सर्विसेज का डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट क्रिएट करना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक ब्लैंक सॉल्यूशन आप ऐड कर सकते हो आपके प्रोजेक्ट के अंदर. इसके बाद आपको जो भी सर्विसेज ऐड करनी है. सो अभी मैंने जो भी 3 सर्विसेज इसमें ऐड किए, वो डॉटनेट कोर की वेब एपीआई का टेम्पलेट है. तो जब भी आप वेब कोर का डॉटनेट एपीआई का जब भी आप टेम्पलेट क्रिएट करोगे, देयर विल बी सम डिफ़ॉल्ट डेटा विल बी देयर इन पर्टिकुलर टेम्पलेट. So this is the one of the we can say the controller will be defined defaultly. This is the weather forecast. So in that particular we have a one method and that is a get weather forecast, and this is the default get method. In this particular controller we have a defined the routing of that. So ये सेम राउटिंग है जिसका यूज करके हमने अपना कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है लाइक स्लैश एपीआई स्लैश एवरीथिंग डन. सो जब भी मैं इसको कॉल करूंगा, द फर्स्ट डिफॉल्ट मेथड इज गोइंग टू कॉल दिस गेट मेथड. अभी हमारे पास दो सर्विसेज है, फर्स्ट एपीआई और द सेकंड एपीआई. दोनों के अंदर जैसे मैंने बोला वेदर फोरकास्ट का कंट्रोलर है. तो डेटा का डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई हैव trick something data some data in that particular. So that was I have added the S1 and S2. So जो भी सर्विस 1 का डेटा है it was like S1, and whatever the data we have in the second services that we have defined with the S2. Done. So now जब भी आपको प्रोजेक्ट रन करना है, as we have a multiple services, we have a API gateways. So आप डिफॉल्ट जो भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे, देयर विल बी ओनली वन स्टार्टअप प्रोजेक्ट और द सिंगल स्टार्टअप प्रोजेक्ट विल बी देयर. But to running the microservices in the local environment while you are developing, you have to run within a multiple startup project. So how you can do that? So just right click on your solution and you can define the configure startup projects. So here as I have already selected, जब भी आप नया प्रोजेक्ट बनाओगे, there will be this default option will be selected like single startup project. So इधर आपको मल्टीपल स्टार्टअप चेक करना है. तो चेक करने के बाद आपको जो भी प्रोजेक्ट इसके अंदर रन करने हैं उसको आपको एज अ स्टार्ट डिफाइन कर देना है. सो एज ऑफ नाउ मुझे एपीआई गेटवे का फर्स्ट एपीआई का और सेकंड सर्विसेज का काम है, तो मैंने उसको स्टार्ट किया हुआ है. सो जब भी मैं रन करूँगा तीनों प्रोजेक्ट साथ में स्टार्ट होंगे. डन. सो नाउ ज़्यादा टाइम ना लगे इसलिए मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को रन किया हुआ है. सो जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ. लेट्स से एज आई हैव टोल्ड यू दैट वी हैव अ वेदर फोरकास्ट सर्विस 2. सो it was running on the 5002 port, right? So this is the actual the data like S2. Done. Regarding the first service, so it is working on the 5001 port, and if we see the data for that particular S1, so it is like S1. Done. So now the thing is that we have a one common port and that is the 7000, so in which we have to run this particular project. So this is the our initial configuration URL that I have as of now I have the defined. So now द एक आपके मन के अंदर वो एक क्वेश्चन होगा कि ये डिफ़ॉल्ट यूआरएल अभी क्यों आ रही है. इट शुड बी लाइक स्लैश 7000 ओनली. बट अभी मैंने मेरा जो भी गेटवे एपीआई का प्रोजेक्ट है उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ के अंदर लॉन्च सेटिंग के अंदर एक लॉन्च यूआरएल अभी डिफाइन की हुई है. आप जो भी लॉन्च यूआरएल इधर सेट करोगे दैट विल बी एज एन डिफ़ॉल्ट लॉन्च यूआरएल व्हेन यू आर गोइंग टू रन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट. सो नाउ इसके अंदर जब भी मैं देखता हूँ, लेट्स से अभी मेरी माई फर्स्ट एपीआई सर्विस है और वेदर फोरकास्ट का एलो फ्रॉम एमजे में निकाल देता हूँ. दैट मीन्स जब भी मैं ये निकाल दूंगा दैट मीन्स देर विल बी वन डिफॉल्ट मेथड एंड दैट इज द गेट दैट इज गोइंग टू कॉल. सो सिर्फ आपके डेमोन्स्ट्रेशन के लिए दैट वी आर एक्चुअली गेटिंग कॉल इन टू दिस अवर वेदर फोरकास्ट कंट्रोलर नोट. वी आर जस्ट पुटिंग द डिबग हियर.
Done. Let's say now let me hit this particular URL. So now you can see here that we are getting called into our service one into our get method. Now let's see the data that we are getting. Right? So now you can see here that we are getting the S1 data. Done. So now what was the main purpose of an API gateway? कि हम एक ही पोर्ट से डेटा को रन करेंगे और एपीआई गेटवे डिफरेंशिएट करेगा उसको कौन सी सर्विस को रन करना। ये सेम हो गया। मैंने फर्स्ट एपीआई सर्विस का वेदर फोरकास्ट कॉल किया और जैसे मैंने पहले भी आपको दिखाया था स्पेसिफिक आपको यूआरएल कोई भी रन करनी है यू आर एबल टू डू दैट, देयर इज नो इश्यू विद दैट। डन। सो ये माय फर्स्ट एपीआई सर्विस का हुआ। लेट्स से मुझे मेरी दूसरी सर्विस रन करनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सो जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है दैट सेम थिंग यू हैव टू अप्लाई फॉर दैट एज वेल। You have to just replace this my second service. Now you can see whatever the data we are getting here is from the service 2. Done. So this was all about the API gateway that how it will going to call। जो भी प्रोसेस हो रही है वो बैकएंड एपीआई गेटवे में ओसेलोट कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हो रही है। वो इंटरनल सब मैनेज करके हमने जो कॉन्फ़िगरेशन सेट किया है उसका यूज करके वो सर्विस 1 या सर्विस 2 को कॉल करेगा और वट एवर द थिंग्स दैट यू हैव डिफाइंड इनटू योर जेसन we can say the particular configuration file। Yeah, so done, that's it।